ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ಇವರು ನಡೆಸಿದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ SSLC ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2025 ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದಿತ್ತು, ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುವಿಕಲ್ಪೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ 8 ಅಂಕಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 1 ಅಂಕ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನು, ರಾತ್ ಶಬ್ದ का विलोम रूप है. ಹೌದಾ? ರಾತ್ ಶಬ್ದ का विलोम रूप ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ, ದಿನ್ ಹಗಲು. ಹೌದಾ? ಶಾಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ, ನಿಶಾ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಂಥ ವೇಳೆ. क्वेश्चन नंबर 2 श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है. ಹೌದಾ? ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಬ್ದ का स्त्रीलिंग रूप है. ಮಾನ್, ಶ್ರೀಮತಿ, ಮಹಿಳಾ, ಪುರುಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಬ್ದ का स्त्रीलिंग रूप ಶ್ರೀಮತಿ. ಹೌದಾ? ಮಹಿಳಾ, ಮಹಿಳೆ, ಪುರುಷ, ಪುರುಷ, ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದು. क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है. ಹೌದಾ? ಏಕವಚನ ಬಾತೆ, ಬಾತೆ ಮಾತುಗಳು ಬಹುವಚನ, ಆಂಖೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಹುವಚನ, ಪೈಸಾ, ಹೌದಾ, ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೂಪಾಯಿ, ಕಪ್ಪಡೆ, ಹೌದಾ, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಇದು ಬಹುವಚನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬಹುವಚನ ಇದೆ, ಇದು ಬಹುವಚನ ಇದೆ, ಇದು ಬಹುವಚನ ಇದೆ. ಪೈಸಾ ಮಾತ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಏಕವಚನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. दिखाना, दिखावट, देखना, दिखवाना. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಖಾನ, ದಿಖವಾನ, ದೇಖ್ನಾ, ದಿಖಾನ, ಆಮೇಲೆ ದಿಖವಾನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇಖ್ನ, ದಿಖಾನ ಪ್ರಥಮ ಆಗ್ತದೆ, ದಿಖಾನ, ದ್ವಿತೀಯ ದಿಖವಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು क्वेश्चन नंबर 5 वनौषध शब्द में संधि है. ವನೌಷಧ ಅವು ಬಂದರೆ ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಹೌದಾ? ARO ಬಂದರೆ ಅದು ಗುಣ ಸಂಧಿ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಯನ ಸಂಧಿ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. जलप्रपात शब्द में समास है. कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास. हमारा सरियाद उत्तर तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 क्या आप मैसूर जा रहे हैं. ವಾಕ್ಯ में ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ. ಹೌದಾ? ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಡಾಟ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಕಾಮ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಆಗಿರ್ತದೆ. 2 ಡಾಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಆಗಿರ್ತದೆ. क्वेश्चन नंबर 8 रमेश कलम डैश पत्र लिखता है. ಹೌದಾ? ರಮೇಶ್ ಕಲಂ ಸೆ ಪತ್ರ ಲಿಖ್ತಾ ಹೇ. ಹಂಗಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಪರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೇನು ಆಗೋಲ್ಲ, ಕೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೆ. ಹಿಂದಿಯನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತವೆ. क्वेश्चन में नंबर 2 निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित ಶಬ್ದ लिखिए. ಮೊದಲ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ಪದವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಮೂರನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಜೀಜಾ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಚಚೇರೆ ಭಾಯ್, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, वर्मा डॉक्टर. टोली का नाम बाल शक्ति, टोली का मुखिया मोहन. पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल दया. अभियान आಗೋದಿಲ್ಲ, अभिमान ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದಾಗಿದೆ. क्वेश्चन में नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पूर्ण वाक्यों में लिखिए ಅಂತ 1 अंकದ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 13th वन वर्षों से सक्सेना का परिवार में कौन काम कर रहा था. वर्षों से सक्सेना के परिवार में साधोराम काम कर रहा था. बच्चों की तारीफ किसने की. बच्चों की तारीफ कलेक्टर साहब ने की. समय की पहचान कविता में कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं. समय की पहचान कविता में कवि आत्म पर विश्वास करने को कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 नंद और यशोदा का रंग कैसा था. नंद और यशोदा का रंग गोरा था. क्वेश्चन में नंबर 4
ನಿಮ್ಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೋಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 2-3 ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ में लिखिए ಅಂತ 2 ಅಂಕದ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 16 ಅಂಕಕ್ಕೆ 8 2 16. 17th one क्वेश्चन. जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं? जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में कहते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 18. लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों किया? लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया क्योंकि सम्मेलन में बहुत सारे चोरियां हो रही थी. सब चीज़ें चोरी में चली गई थी. ताला तक चोरी में चला गया था. अब लेखक ही था. वह सोचता है कि अगर वह रुका तो वह भी चोरी लिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19. लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? लालिम और किंचा लालीदाम मकान बनाने का तय किया कि वे मकान बनाएंगे. मुश्किल यह था कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोटों की ज़रूरत क्यों थी? उत्तर. धीरज सक्सेना को नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर धीरज सक्सेना के नाम संभालने के लिए धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोटों की ज़रूरत थी. क्यों ಅಂತ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ ಇರಲಿ, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 21. मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? मनुष्य को नष्ट न करके सुसमय पर जो काम करना है उसे उसी समय ही मन लगाकर करे, तभी तो मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति संभव है. क्वेश्चन नंबर 22. यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? यशोदा कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर खुश हो जाती है. वह कहती है, कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है. वे गोधन की कसम खाकर कहती है, मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो. क्वेश्चन नंबर 23. शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है कैसे? शनि ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं. वे वलय अत्यंत विस्तृत और स्पष्ट है. शनि के इन वलयों या कंकनों ने इसे सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह बनाया है. इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, यानी कि आपको नहीं आता है तो नीचे दिए हुए प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं. शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है कैसे, स्पष्ट कीजिए. शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की उपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए वहाँ बहुत कम सूर्य ताप पहुँचता है. शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेल्सियस 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है. क्वेश्चन नंबर 24. महात्मा गांधी जी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? गांधी जी का कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇರಲಿ. ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಟೈಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮೇಲಿದ್ದಾದರೂ ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿದ್ದಾದರೂ ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು. अनवर ने मीना मैडम से क्या कहा? एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्यौहार आदि का आदर करना चाहिए. क्वेश्चन में नंबर 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए. 3 अंक के प्रश्न, टोटल 9 प्रश्न है. 27 अंक के लिए. क्वेश्चन नंबर 25. सब्जी और फलों में महत्व के बारे में लेखक प्रेमचंद जी का विचार क्या है? उत्तर. टमाटो को पहले कोई भी न पूछता था,
टोमेटो अब भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर पहले गरीबों की पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग गाजर का हलवा ही खाते थे। रोज एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्जी और फलों में बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गिल्लू के अंतिम दिन का वर्णन कीजिए। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। गिल्लू दिन भर न कुछ खाया न वह बाहर गया। गिल्लू के पंजे ठंडे हो रहे थे जब लेखिका जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ गिल्लू चिरनिद्रा में सो गया। क्वेश्चन नंबर 27, बसंत स्वाभिमानी तथा ईमानदार लड़का था, कैसे समझाइए। बसंत ईमानदार लड़का है, वह गरीब जरूर है किंतु भीख नहीं मांगना चाहता, अपने से बड़े कार्य करता है, छोटी छोटी चीज़ों को बेचना चाहता है। राजकिशोर 2 पैसे देने के लिए तैयार भी थे किंतु बसंत उसे साफ इनकार कर कहा कि मैं भीख नहीं लूँगा। दूसरी यह घटना है कि वह 1 रुपये का छुट्टा लेने जाता है, उसके पैर मोटर के नीचे दब जाता है। ऐसे संदर्भ में भी बसंत अपने छोटे भाई प्रताप को 14.5 आने लौटाने के लिए 14.5 आने लौटाने के लिए कह भेजता है। इन घटनाओं से पता चलता है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है। प्रश्न 28, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट के महत्व के बारे में लिखिए। इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। पूरी एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। 29 क्वेश्चन, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री ने क्या किया, विवरण कीजिए। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री ने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माथे ताज का चुंबन किया। थैले से हनुमान चालीसा, दुर्गा माँ का चित्र निकाला, उसे लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर अपने रज्जू नेता अंगदरोजी के प्रति आदर भाव से झुकी। 30th क्वेश्चन, मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य नयन मनोहर है। भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। वन उपवन फल फूलों से युक्त है। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। भारत माँ सुख संपत्ति धन धाम को मुक्त हस्तों से बांट रही है। 31st क्वेश्चन, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है, बताइए। मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। स्वयं को पहचानना, बुद्धि पर चैतन्य की जीत करना। क्वेश्चन नंबर 32, राम नाम मणि दीप धरु जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बहिरो जो चाहसी उजियार। प्रस्तावन, प्रस्तुत दोहे को राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी द्वारा लिखित तुलसी के दोहे से लिया गया है। भावार्थ, प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य
शुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 33वां, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಬೀಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಬೂನು ಹಾಗೂ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। क्वेश्चन में नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। 4 अंक के 2 प्रश्न है। 34वां प्रश्न, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टादकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हळेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिर में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती है। श्रवणबेलगोला के गोमटेश्वर की प्रतिमा दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रहा है। विजयपुर के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। सेंट फिलोमिना चर्च जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वास्तु संग्रहालय आकर्षणीय है। जो प्रश्न आए उस प्रश्न को लिख सकते हैं। इस प्रश्न के लिए अथवा प्रश्न दिया गया है। अथवा प्रश्न क्या है? प्रश्न कर्नाटक, ओके, कर्नाटक प्राकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवारकर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियाँ शोभायमान है। फर्स्ट क्वेश्चन ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅನೋಖಿ है वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು। ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಾ? क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। ಇದು फिक्स क्वेश्चन। ಇದು असफलता डैश डैश भागो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्वेश्चन नंबर 36, 7th में, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर जी की निस्वार्थ सेवाओं से प्रभावित हुए और इसलिए उन्होंने स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी को आमंत्रित किया। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया। भारत का संविधान संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर अंबेडकर जी को सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने के उपलक्ष्य में डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि प्रदान की। यह संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी से देश में लागू हुआ। वे भारत के प्रथम विधि मंत्री बने। गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर जी से किस कारण प्रभावित हुए? गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर जी की निस्वार्थ सेवाओं से प्रभावित हुए। संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान किसे माना गया है? भारत का संविधान संसार का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया है। अंबेडकर जी को डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि क्यों मिली? अंबेडकर जी को सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने के उपलक्ष्य में डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि मिली। भारत का संविधान कब से देश में लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी से देश में लागू हुआ। क्वेश्चन में नंबर 8, 37th क्वेश्चन, प्रबंध लिखिए। किसी एक विषय पर प्रबंध लिखिए। इंटरनेट प्रस्तावना वैज्ञानिक आविष्कारों में मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। आज का युग इंटरनेट युग है। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उनकी सोच की क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अर्थ इंटरनेट
अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। लाभ: इंटरनेट द्वारा पल भर में कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने से भेज सकते हैं। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितना भी रकम भेजी जा सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा देश विदेश में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा कई देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ई गवर्नेंस द्वारा प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। हानि: इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पैरवी बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं। इंटरनेट से वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। उपसंहार: जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट एक और योगदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है, इसलिए आप लोग को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। अब बेरोजगारी हमारे देश की एक कठिन समस्या है। बेरोजगारी एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है जिसके कारण देश की शांति और व्यवस्था को खतरा है और देश की प्रगति कुंठित हो रही है। बेरोजगारी का अर्थ: बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को उसकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है तो उसे बेरोजगार माना जाता है। बेरोजगारी के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, आधुनिक मशीनों का उपयोग, उद्योग धंधों का अभाव। लघु तथा कुटीर उद्योग की अवनति। बेरोजगारी के दुष्परिणाम: बेरोजगारी के कारण निर्धनता में वृद्धि होती है, भूखमरी की समस्या उत्पन्न होती है, अपराधों में वृद्धि होती है, मानसिक अशांति होती है और कुछ लोग तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। देश की आर्थिक स्थिति कुंठित होती है। बेरोजगारी को दूर करने का उपाय: लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण पर नियंत्रण करना, कुटीर और लघु उद्योगों का विकास करना, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना। उपसंहार: हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है, अपने काम धंधे करने के लिए लोन दिया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ सहयोग करें और हमें मिलकर इस समस्या को हल करें। क्वेश्चन में नंबर 9, 38 क्वेश्चन: निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए। 5 अंक के लिए। दिनांक 1/3/2025। लेफ्ट हैंड साइड, प्रेषक गगन के नायक, 10वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल करेकट्टे, चन्नगिरी तालुका। सेवा में कक्षा अध्यापक जी, सरकारी हाई स्कूल करेकट्टे, चन्नगिरी तालुक। आदरणीय महोदय, विषय 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए उपयुक्त विषय के अनुसार आपसे सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई के विवाह संपन्न हुई है। विवाह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूं, इसलिए मैं 3 दिन स्कूल नहीं आ सकता। अंत आप मुझे दिनांक 2 मार्च 2025 से दिनांक 5 मार्च 2025 3 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें। धन्यवाद। सहित आज्ञाकारी छात्र, राइट हैंड साइड, गगन के नायक, स्थान करेकुट्टे। ಓಕೆ, अब तक ನಾವಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2025
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3rd ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿಯ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 4 1 2 3 4 ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಆದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕನ ಗಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.